یہ جو میں نے ٹوپی شاپنگ پہنی ہے نا، یہ فیشن کے لیے نہیں پہنی ہے، یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے۔ السلام علیکم پیارے والے گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ بس یہ ہے کہ الرجی کی دوائیں چل رہی ہے، جو الرجی مجھے ہوئی تھی تو 1 مہینے کا کورس سے الرجی کا، خوشبو سے مجھے الرجی ہو گئی ہے، ڈسٹ سے پتہ نہیں کیا ہے، الرجی ہو جاتی ہے مجھے، پہلے نہیں ہوتی تھی، اس والی جو سردیاں ہے نا اس میں ہو رہی ہے مجھے الرجی، تو احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چاول آپ فی الحال بالکل بھی نہیں کھائیے ورنہ کھانسی ہو جائے گی، اور ہم لوگ چاولوں کے بہت شوقین ہیں، تو میں کیسے کنٹرول کر رہی ہوں خود پہ وہ مجھے پتا ہے۔ کافی لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا کہ آپ ویک ہو گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو میری من پسند چیزیں ہیں جیسے جلیبی ہے، چاول ہے، آئس کریم ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں وہ میں نہیں کھا پا رہی کیونکہ میری دوا اینٹی بائیوٹک چل رہی ہے، اس وجہ سے تو بور بھی ہو رہی ہوں، پتہ نہیں کیا موڈ کو ہو جاتا ہے، انسان ہوتا ہے نا دوائیں کھاتا ہے پھر موڈ عجیب و غریب ہو جاتا ہے، تو میرا موڈ بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں رلی ہے، ہم اس کو رلی کہتے ہیں، تو سکندر یہاں سوتا ہے، اور یہ رلی، یہ اس کا ڈیزائن یہ ہے جہاز والا ڈیزائن، یہ ایروپلین ڈیزائن رلی ہے، یہ میری بہن نے مجھے دی تھی گفٹ، جو لاڑکانہ والا بہن ہے نا اس سے، تو بس ابھی بیٹھی ہوں، میں نے کام والی ماسی رکھی ہے کیونکہ مجھے ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ نہیں ڈالنے، نمونیا ہو جاتا ہے نا بار بار، اور ٹھنڈ اتنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ جو میں نے ٹوپی شاپنگ پہنی ہے نا، یہ فیشن کے لیے نہیں پہنی ہے، یہ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے، تو اس کو کروں گی میں فولڈ، یہ ڈیزائن آپ کو دکھانی تھی، اور سکندر پتہ نہیں آج کل کہاں بزی ہے، میں اس کو بلاتی ہوں پھر وہ چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ نا میں اپنے دوستوں کے ساتھ بزی ہوں تو خود بلاگ بنایا کر، میں نے کہا کہ صحیح ہے، وہ ٹھنڈ بہت ہے، آج سوچ رہی تھی کہ میں کمبل میں سوئی رہوں، پھر میں نے سوچا کہ کمبل سے سوئی رہنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے، اٹھ کے کام پھر بھی مجھے ہی کرنے، تو ابھی میں سوچتی ہوں لنچ بنا دوں، صبح کو ہم نے بس چائے اور بسکٹ کھائے، اور ابھی میں بنا رہی ہوں لنچ، اور لنچ میں کیا بنے گا، رات میں لے آئی تھی تھوڑی بہت سبزی گھر کی، یقین کیجیے نا موسم میں ایسی ہے عجیب و غریب کہ آپ کا دل نہیں کر رہا کہ کچھ کرو، گیس ایک نہیں ہے، چولہا جلاؤ تو کھڑے ہو، گیس ہے ہی نہیں، تو بندے کا دل کیسے کرے گا کچھ۔ میں ہوم ریمیڈیز بھی کر رہی ہوں، شہد کھا رہی ہوں، بوائل انڈا کھا رہی ہوں، ویسے میں نہیں کھاتی تھی بوائل انڈا، میں کیا کروں۔ یہ دیکھ رہے میں نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا ہے، سن بلاک لگایا ہوا ہے اور تھوڑا سا بلش اور لپسٹک، ابھی میں کام بھی کر لوں، پہلے میری عادت ہے صبح اٹھنے سے پہلے میں نماز پڑھ کے پھر میں تھوڑا تیار ہو کے پھر کھانا بناتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بلاگ۔ گھણી એની અંદર ન કરજે એની અંદર કંદી બહુ हीअं ॿार जी तो ॿार कंदी थोड़ियूं त पोइ या तेगड़ी के बाह हूंदी आहे। تو یہاں پہ میں لنچ بنانے کی تیاری کر رہی تھی، لکڑیوں پہ آج کھانا بنانا تھا کیونکہ گیس تھی نہیں اور سلنڈر میں کر نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، میں کہتی ہوں نا گیس ہو یا لکڑی پہ ہی کر لے بندہ، تو یہ آگ جلا کے مجھے سکندر نے دی، اور یہ مجھے انسٹرکشن بھی دے رہا تھا کہ ایسے ایسے رکھنا لکڑی کو، کیونکہ کافی دنوں کے بعد میں لکڑی پہ وہ کھانا بنا رہی تھی، شاید میں بھول گئی تھی، تو یہاں پہ میں اپنی جو لنچ کی چیزیں ہیں سمیٹ رہی تھی، ٹماٹر یہ وہ، مرغی دھو کے میں نے رکھ دی تھی رات ہی، جیسے ہی میں لاتی ہوں مرغی تو سرکے سے دھو کے رکھ دیتی ہوں فریزر میں، اور یہ مجھے سیٹ کر کے دے رہا تھا، دیکھتی کو کہ کہیں یہ گر نہ جائے،
मगर आज जो देगची है ना वो सेट नहीं हो रही थी। इससे अच्छा था कि मैं मिट्टी की हांडी में बना लेती सालन, क्योंकि वो थोड़ी वज़नी होती है और डर बंदे को नहीं लगता गिरने का। आइंदा से पहला दिन था ना मेरा लकड़ी पे खाना बनाने का, तो समझ में नहीं आ रहा था। जैसे मैं सेट हो जाऊँ ना एक बार, तो वैसे तो हम लोग हमारे गांव में गैस है ही नहीं। अभी मैं गांव से होके आई हूँ, वहाँ देख रही थी, वहाँ वो क्या है कि लकड़ी पे खाना बना बना के ना उनको आदत हो गई है। तो मैं वहाँ पे भी देख रही थी, नोट कर रही थी कि ये लोग कैसे जीते हैं और हमें अल्लाह पाक ने कितना सुख दिया हुआ है शहरों में। मगर क्या पता था कि मैं कराची आऊँगी और गैस नहीं होगी और मैं भी ऐसे ही बनाऊँगी। तो ये मेरा वीडियो आज उनके नाम है जिनके घरों में गैस नहीं है और वो अभी तक लकड़ियों पे खाना बनाते हैं। वैसे लकड़ी पे खाने का टेस्ट भी होता है, आपको पता है। ये अलग बात है कि घर पूरा धुआं धुआं हो जाता है और जो है आपका फेस, अगर आपने 2 किलो मेकअप किया हुआ हो और कर रहे हो तो वो भी थोड़ा इधर इधर हो जाता है। मगर कोई बात नहीं, चेहरे के लिए ये नहीं है कि आप खाना बनाना ही छोड़ दें। तो मैंने भी फुल किट शिट होके खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। टमाटर को मैं छोटे क्यूब्स में काट रही थी और बार बार देख रही थी। ये देगची पता नहीं गर्म होने में क्यों टाइम ले रही थी ना, प्याज ब्राउन हो जाए, मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी। तो मैंने आज ये नोट किया कि जब भी आप लकड़ी पे बनाओ तो लकड़ियों की साइज़ छोटी हो, क्योंकि बड़ी साइज़ पे ना आग बाहर आ रही थी। तो आज पहला डे था, एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तजुर्बा हो गया ना कि आइंदा मैं इस चीज़ से एहतियात करूँगी। और वैसे भी आज मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत में मज़ा ही नहीं था और मैं चाह रही थी कि ना आज मैं सोई रहूं। फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन तो सोई रही हूं, तो आज मैंने बाहर से खाना मंगवाया था 2-3 दिन। फिर मैंने कहा कि बाहर का खाना पता नहीं कैसा हो होटलों का, फिर ना हम लोग बीमार हो जाएं ज़्यादा। तो अभी तो घर में बस मैं ही बीमार हूँ। सिकंदर और असद को अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है, शुक्र है, वरना तीनों इकट्ठे बीमार हो जाते हैं ना फिर तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसे, आज मैं ना समझ में नहीं आ रहा था, पता है क्या, वैसे हर चीज़ें मैं यहाँ रखती हूँ, वो जो मैट है मेरा ब्लू कलर का वो बिछाती हूँ, मगर आज मेरा दिमाग ना घूमा हुआ था। गुस्से में भी नहीं थी, बस समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात को शायद मैंने रिजेक्स टैबलेट एलर्जी वाली खाई हुई थी ना, सुन्न हुआ था मेरा दिमाग। तो ये अभी मैंने इसमें चिकन डाला उस हिसाब से, और मुझे तो भूख आजकल लग नहीं रही है क्योंकि गला मेरा ख़राब है इस वजह से। और ये देखें, जब से मैं गांव में मैं सही थी, मेरी खांसी कम हो गई थी। फिर वहाँ से जैसे ही मैं आई हूँ, शायद मौसम वहाँ का और था, कराची का और था, तो फिर से मैं बीमार हो गई हूँ। और ये लकड़ियाँ देखें कितनी आग दे रही थी। लकड़ियाँ बहुत अच्छी थी, मगर बस यही गलती थी कि ये बड़ी साइज़ की थी। अभी मैंने सिकंदर को कहा कि अभी ना छोटी छोटी साइज़ की लकड़ियाँ ना कट करके रखो। और मैंने सारे मसाले जो होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, ये डाल दिए और टमाटर भी मैंने ऐड कर लिए थे। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और फिर देखिएगा कि मैं क्या करती हूँ। अब जो देगची है फुल गर्म हो गई थी और रेडी टू कुक थी, और हरी मिर्च भी मैंने डाल दी। यकीन कीजिए सालन बहुत अच्छा बना था, बहुत ही लजीज। लकड़ियों पे खाना बनाने का एक ये भी है कि ना टेस्ट बहुत आ जाता है खाने का। और मैं इसको अच्छे तरीके से घुमा भी रही थी और बार बार लकड़ी को पाँव की मदद से सेट भी कर रही थी। थोड़ा मैंने भुनाई के लिए इसमें पानी डाला, इसको मैंने थोड़ा ढक दिया और मैं देख रही थी कि देगची कितनी काली हो गई है। तो ये तो लकड़ियों की जो है ना उसकी वजह से काली हो गई थी। और यहाँ पे मैंने आलू कट करना शुरू कर दिए, आलू और एक हरी मिर्च और भी लाई, क्योंकि आजकल मैं हरी मिर्च 2-3 ही डाल रही हूँ,
वैसे मैं नहीं डालती थी, मगर मुझे ना वैसे ही खाना अच्छा नहीं लगता, तो हरी मिर्च की खुशबू से ना थोड़ा बहुत मैं 1-2 निवाला खा लेती हूँ। तो अभी मैंने आलू भी इसी टाइम ऐड कर लिए। अब ये बात नोट कीजिएगा, अभी इसकी बुनाई ही चल रही है। तो फिर से मैंने इसमें लकड़ियाँ डाली और फिर से 5 मिनट के बाद चेक किया। अभी ये इतना नहीं बना था ना, मैं सोच रही थी इसका पानी जब खुश्क हो जाए ना फिर इसमें और शोरबे के लिए पानी ऐड करूं। तो मैं देख रही थी आग इतनी थी, वो देखें इधर से उधर से आ रही थी और मैं समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रही थी देगची छोटी है ना, बड़ी देगची रखती तो साइड्स जो इसके थे वो बंद हो जाते। और हवा भी माशाल्लाह आज इतनी तेज़ हो गई, हवा को भी पता चल गया कि ये आज लकड़ियों पे खाना बना रही है। तो मैं भी बड़ी डीठ बंदी हूँ, मैंने भी कहा हवा तू भी तू है, मैं भी मैं हूँ। आज देखते हैं, मुकाबला करते हैं कि कौन जीतता है। तो हवा को मैंने बता दिया, ये जो घुल रही थी हवा। तो अभी मैंने इसमें पानी ऐड किया शोरबे के जितना, उस हिसाब से मुझे पता होता है कि आलू कितने पानी में गल जाता है। तो फिर से मैंने इसको ढकना दे दिया। 10 मिनट में ये रेडी हो गई थी मेरी हांडी इसे फ़िलहाल कह सकती हूँ। और मैंने इसमें लकड़ियाँ और भी ऐड कर ली कि आग कहीं बंद ना हो जाए। और ये देखिए छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं ना, इससे ये फ़ायदा हो रहा था कि इधर उधर आग नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने इसमें और लकड़ियाँ डाल दी और साथ में चावलों का आटा भी ले आई। सिकंदर ने कहा कि बाहर से रोटी मंगवा लूँ, मैंने कहा नहीं, मैं थोड़े ना चीलड़े चावलों के आटों के बना के वीडियो भी बनाना है। तो मैंने कहा कि नहीं छोड़ो, आज बाहर से नहीं रोटी मंगवाओ। तो वैसे भी चावलों की रोटी असद को भी पसंद है। तो आप लोग कहते हैं ना कि हमें चावलों की रोटी बनाना सिखाएं। तो सबसे पहले मैंने आटे में नमक डाला और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गूंदना शुरू किया, जैसे ना गंदम का आटा होता है इस तरीके से। ये देखिए, आप में से काफ़ी बहनों के मैसेज आए थे कि आप ना आटा कैसे गूंदती हो। तो आटा चाहे आप चावल की रोटी बनाएं या चिलड़ा बनाएं, जितना आपका आटा अच्छा हुआ गूंदा होगा उतनी आपकी रोटी अच्छी बनेगी। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए इसको ना सख्त रखा, ना आटे को ना नरम रखा। आपको मैं थोड़ा ट्रिक भी बता रही थी। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको गूंद लिया। काफ़ी क्लिप्स थी, बड़ा हो रहा था वीडियो, इसलिए मैंने ट्रिम कर ली, अदरवाइज़ मैंने अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई की थी। अब इस तरीके से यकीन जाने ये बहुत ही अच्छा आटा है। ये हैदराबाद कासमाबाद से मैं लाई थी, वहाँ पे भी अच्छा चावलों का आटा मिलता है, मगर जब भी मैं कराची से लेती हूँ तो मुझे अच्छा आटा नहीं मिलता। अभी अच्छा आटा मिल गया था मुझे। और सच्चर गोट से जो मालवी स्टोर है ना, जहाँ गोश्त मिलता है, वहाँ पे भी आटा अच्छा है। और अभी मैंने इसको ऐसे सेट किया और आपको दिखाऊंगी कि जैसे अभी तो आज मैं चिलड़े बना रही थी, क्योंकि मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो रोटी हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे पेड़ा लिया, इसको ऐसे बाल की तरह फोल्ड कर लिया, फिर इसको प्रेस करके प्लेट की तरह शेप देते हैं। आप देखिए, ऐसे प्लेट की तरह शेप देके फिर तवे पे डालते हैं। ऐसे बनती है रोटी। और आज मैं बना रही हूँ चिलड़ा। तो ऐसे आटा गूंद लिया और असद भी आ गया था। मैंने इससे कहा कि बाहर खेलने गया था, तो मैंने इसे कहा कि जाके नहा के आओ तो मैं तुम्हें रोटी दूँ। ट्यूशन का उसका टाइम हो रहा था। आज था सैटरडे का दिन, और वैसे मैं सैटरडे के दिन सैटरडे संडे घूमने जाती हूँ, मगर आज सिकंदर को खुद ही मैंने नहीं कहा, क्योंकि मेरी तबीयत में जब मज़ा नहीं होता ना, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अभी हमारी जो मुर्गी थी वो रेडी हो गई थी, और मैंने फिर भी इसमें नमक चखा। माशाल्लाह मेरी देगची इतनी सुंदर हो गई थी, ब्लैक ब्लैक, कि मैं सोच रही थी कि ये साफ़ होगी कि नहीं होगी।
फिर सालन को मैंने अंदर रख दिया। अब बारी थी तवे की। तो पहले मैं तो सोचा ये मोटे वाला तवा था ना, जो मोटी प्लेट वाला था, तो वो आज मैंने ये रखा। तो ये भी गलती मैंने नोट की कि ये मुझे नहीं रखना चाहिए था, पतला तवा। मेरे पास टोटल 3 तवे हैं, तो मैंने सोचा अगली बार ना जो पतली प्लेट वाला तवा है वो रखूँगी। तो अभी देखिएगा, जैसे हम चावलों के रोटी के चिल्ले बनाते हैं ना, तो ऐसे पानी ऐड करते जाते हैं। जैसे डोसा इंडियन लोग बनाते हैं, तो वो भी इस तरीके से ना आटे की पेस्ट बनाते हैं। और पेस्ट ना गाढ़ी रखनी चाहिए ना पतली, मीडियम हो, वरना ये आपकी रोटी टूट जाएगी। तो एक बहन ने मुझे कहा था कि मेरा नाम लेना, शशि किरण फ्रॉम हिमाचल। तो आज शशि, मुझे आपका नाम याद आ गया। वैसे मैं अपना नाम भी भूल जाती हूँ, मगर आज आपका नाम याद आ गया। तो शशि किरण, मैंने आपका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच फ्रॉम यू वाचिंग मी फ्रॉम हिमाचल। और आपने मुझे कहा हिमाचल आए, तो मुझे इतनी फुर्सत ही नहीं कि मैं पूरी कराची घूमूं। कभी नसीब में हुआ तो पूरी दुनिया घूमूंगी। अभी ये देखिए, मैंने ऐसे तवे पे डाला और मुझे इतना डर आग से लग रहा था, डर लग रहा था कि आग न लग जाए, क्योंकि फर्स्ट डे था और चूल्हा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लकड़ियों की आग थी, इतनी तेज़ थी। वैसे जो शेणे होते हैं, गोबर जो सूखा होता है, उसके भी होते हैं, तो उससे इतनी आग नहीं होती। ये लकड़ियों की पता नहीं कैसे आग थी, इतनी तेज़ थी। तो जल्दी जल्दी से मैंने एहतियात करके मैंने कहा आज वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ना फ्राई हो जाऊं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी हमारी एक बन गई। और जल्दी से मैंने सोचा कि ये पहली रोटी असद को दूँ, दूसरी सिकंदर को दूंगी। और मैं ब्रेड से खा रही थी। आजकल मैं ब्रेड पे ज़्यादा फोकस दे रही हूँ, डान ब्रेड, वो उसके साथ खाती हूँ रोटी। तो ये देखिए माशाल्लाह से। और ये तवा ना लकड़ियों पे रोटी बहुत अच्छी बना रहा था। तो अब इसी तरीके से मैंने दूसरा चिलड़ा भी मैंने डाल दिया। टोटल 3 चिलड़े मैंने पकाए। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में। और ज़ाहिर सी बात है, मैं स्टैंड पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है, कभी स्टैंड इधर कर रही थी, कभी इधर कर रही थी। तो अब इस रोटी की साइड को मैं पलटी कर रही हूँ। आप सोचते होंगे आज साजदा का दिमाग घूम के आए, ये कर क्या रही है, खेल रही है या खाना बना रही है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और फाइनल ये रोटी भी बन गई। फिर मुझे याद आ गया तक आग तो कम हो गई, फिर मैंने इसमें लकड़ियाँ ऐड की। तो सलाम है उनको जो लकड़ियों पे खाना बनाती हैं, मेरी बहनों को, भाइयों को, दोनों हाथों से मेरा सलाम है। बहुत मुश्किल काम होता है लकड़ी पे खाना बनाना। तो दरवाज़ा खटखट रहा था, तो मुझे लगा कि सिकंदर आ गया है, जल्दी से इसको भी खाना दे दूँ। वीडियो की फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ आपके कमेंट्स। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको उसके रिप्लाई भी देती हूँ। तो सिकंदर आ गया था। अब ये सुबह सुबह मुझे दौरा पड़ा था टिकटॉक बनाने का। वैसे मैं टिकटॉक नहीं बनाती, अपने लिए बनाती हूँ, प्राइवेट में रखती हूँ। तो ये मैंने न्यू हेयर कट करवाए हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी ये टिकटॉक शेयर कर लूँ। दूसरा टिकटॉक असद के साथ बनाया, बाजीगर वो बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। और मैंने और असद ने मिलके बनाया। असद बना ही नहीं रहा था मेरे साथ, मैंने इसे पकड़ के कहा कि मेरे साथ टिकटॉक बनाओ। बिल्कुल चाइना वाला मूड है मेरा, कभी भी खराब हो जाता है।